Bismillahirrahmanirrahim. My name is Raja Fad Rahman and today I am here to present presentation on the first three chapters of accounting. So our first chapter is accounting information for decision making. So what is accounting process? Accounting process is a process that helps in recording the financial transactions which are necessary for a business. This process includes summarizing, analyzing, and reporting the transactions to give an overview to the agencies, regulators, and tax collecting authorities. So, accounting links decision makers with economic activities and with their decisions. Functions of accounting system. What are the functions of an accounting system? So, firstly, we have to first function is that it interpret and record business transaction. It firstly in accounting system we have to interpret and record business transaction, classify similar transaction into useful reports. After interpret and record business transactions, we have to classify similar transaction into useful reports. After classifying similar transactions, we have to summarize and communicate information to decision makers. So after this accounting information, what is accounting information? Accounting information is a structure that a business uses to collect, store, manage, process, and reports its financial data. It can be used by accountants, consultants, business analysts, managers, chief financial officers, auditors, regulators, and tax agencies. So accounting information or users of accounting information can be internal as well as external. So in internal users, there are board of directors, chief executive officer, chief financial officer, business unit manager, plant manager, store manager, line supervisors. These are the internal users of an accounting information. So external users of accounting information. Who are external users of accounting information? So external users are owners, creditors, labor unions, government agencies, suppliers, customers, trade associations, and general public. These are external users of accounting information. So financial reporting objectives. What are the objectives of financial reporting? So financial reporting provides information to the investors and investors to invest in the business. It provides the up-to-date information of a business for investors are the ones who have already invested in the business. The second objective is that it tracks the cash flow of a business, how cash is coming and where the cash is going. This is all tracked in the financial reporting. Third objective of financial reporting is that it gives information about accounting policies used, how accounting policy affected in which way. This is all shown in the financial reporting. The fourth objective of financial reporting is it enables the analysis of assets, liabilities, and owner's equity. We get information about our business assets, our liabilities, and owner's equity. This can be shown in the financial reporting. So objectives of management accounting are management accounting के objectives क्या हैं? So the main objective of managerial accounting is to maximize profit or minimize loss. इसका मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि हम उसको देख के हम बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करें और लॉसेस है उसको मिनिमाइज़ कम से कम करने की कोशिश करें. इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि डिसीजन मेकिंग में ये हमारा काम आए, ये इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आए. पिछले डिसीजंस की वजह से हमें क्या नुकसान हुए, इसको देख के हम वो डिसीजंस मतलब कि चेंज कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उस सिचुएशन को देख के हम डिसीजंस कर सकते हैं. और इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारी बिज़नेस की, वो उसको इंटरप्रेट करने में मदद करता है. और ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि इसकी मदद से हम अपना बिज़नेस का जो गोल है या हमारा बिज़नेस का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं.
इसी तरह अचीव करेंगे जैसे कि हमने जो डिसीजंस लिए थे उसकी वजह से हमें क्या नुकसान हुए, उनको देख के हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में थे। और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मतलब कि हम एक अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। जो भी किसी भी हम उस बिज़नेस में देखें तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी हमने पॉलिसी थी उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी इवोलुएट करने में ये हमें मदद देता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए या रन करने के लिए उसको टॉप टू बॉटम एक वो सिस्टम होता है, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन में पहला आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद CEO होता है, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसी तरह ये एक चार्ट की शक्ल में ये ऊपर से नीचे मेंटेन हुआ होता है या इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। अब इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी मीन्स द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ अ कंपनी आर कंसिस्टेंट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज गैप और IFRS। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको हम एक रूल के या प्रिंसिपल को फॉलो करके उसको हम मेंटेन करते हैं। अब इसको मेंटेन करने का मकसद ये है कि जो भी हम इसको हम निकालेंगे, हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो निकलेगी वो सब मतलब कि सारे सबके लिए सबका एक ही होगा। मतलब कि उससे हम फॉलो करेंगे, उसका एक ही प्रिंसिपल होगा जो वर्ल्ड वाइड सारे अकाउंटिंग प्रोसेस है या सिस्टम्स है वो सारे उसी को फॉलो करेंगे। तो ये स्टेक होल्डर्स के लिए मतलब कि या कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है या हम कोई बिजनेस देखना हो, सब के लिए मतलब कि वो देख के इक्वल हो, दूसरे मुल्क में भी या ये मुल्क में भी सबका वो सिस्टम या प्रिंसिपल वो सेम हो। इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये है। तो अब जो भी हम अकाउंटेंट्स है उनको चाहिए कि वो इसी प्रोसेस को या प्रिंसिपल को फॉलो करें ताकि कोई मतलब कि डिफरेंस पैदा ना हो। जैसे कि ये कंपनी पाकिस्तान में और एक कंपनी बाहर है, उसमें फ़र्क ना हो, उसके अकाउंटिंग सिस्टम में फ़र्क ना आए। अब बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी। अब बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी क्या है? बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी ये है कि ओनर जो है और बिजनेस जो है वो दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटीज़ हैं। हम उनको मतलब कि मैच नहीं कर सकते। बिजनेस और ओनर्स को हम सेम तरीके से डील नहीं कर सकते। हमने जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती है हमने उन्हीं को नोट करनी है। ओनर के हमने मामलात को नहीं देखना पड़ता है। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रही है हम उन्हीं को नोट करना होता है या रिकॉर्ड करना होता है। सो और सेकंड चैप्टर इज बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So introduction to financial statements are what are financial statements? Financial statements are basically written records that convey the business activities and financial performance of a company. Financial statements are often audited by government agencies, accountants, firms, etc. To ensure accuracy and for tax, financing or investing purposes. The objective of financial statement is to provide information about the financial position, financial performance, cash flow of an entity. Financial statements help to assess the probability that the enterprise will able to make future cash or it will be profitable in the future. So there are three basic financial statements. First one is the balance sheet, income statement, cash flow statements. These are the basic basic financial statements. So income statement, what is income statement? Income statement shows an information about revenues, expenses and profit that was generated as a result of a business operations for a period, and it measures company's performance over a specific time frame. So basically income statement shows information about revenues, expenses and profit that was generated in the any period of time, specific period of time. For example, for month, for year, for
quarter, year, and for month it can be for the month. The components of income statements are, as I have told you, there are three components like revenue. What is revenue? How much the company earned, it is called revenue. Then expenses, how much the company has spent, and then comes net income before and after tax, or the profits of a company, how much company earned during that period. This all is shown in the income statement of any company or business. Why do we need an income statement? So often the first place an investor or an analyst will look is the income statement. The income statement shows the performance of a business throughout each period, displaying sales revenue at very top. The statement then deducts the cost of goods sold to find gross profit. From there, gross profit is impacted by other operating expenses and income depending on the nature of a business to reach net income. The main purpose of income statement is to find the net income of a business. Income statement answers the questions of how well is the company or business is going or doing. Does it performing well? Basically, the question is it making money? Firms with low expenses and high profits relative to revenues are typically more desirable for investment because it brings more money directly to a shareholder. So, key features of income statement. Key features are that income statement shows the revenue and expenses of a business expressed over a period of time. For example, 1 year, 1 quarter year, or it can be for a month. Uses accounting principles such as matching and accruals to represent figures not presented on cash basis. Used to access profitability in the coming future. These are some key features of income statement. And now balance sheet. After income statement there is balance sheet. So balance sheet is basically where we see it is like an equation: asset equal to owner's equity plus liability. Assets should be equal to owner's equity plus liability. The balance sheet displays the company's assets, liabilities, and shareholders' equity at a point in time. The two sides of balance sheet must be balanced. Assets must be equal to liabilities plus equity. The assets section begins with cash and equivalent, which should be equal to the balances found at the end of cash flow statement. The balance sheet then displays the ending balance in each major account from period to period. Net income from the income statement flows into the balance sheet as a change in retained earning, adjusted for payments or dividends. So some of key features are balance sheet shows the financial position of a company expressed as a financial picture of a company at a specified point, specific time. Has three sections: assets, liabilities, and shareholders. Assets should be equal to liabilities plus shareholders equity. So after balance sheet there is a statement of cash flow. Cash flow is basically an financial information. It describes the cash flow into and out of an organization, how cash is coming into the business and how cash is going outside of a business, or where cash is used. It particularly focuses on types of activities that create use of cash, which are operations, investment, and financing. The cash flow statement shows the source of cash and helps us monitoring incoming and outgoing money of a business. Incoming cash from business comes from operating activities, investing activities, and financial activities. The statement also informs about cash outflow, expenses paid, and business activities and investment at a given point in a time. The information that you get from cash flow statement is beneficial for the management to take informed decisions for the regulating business operations or further business transactions.
बेसिकली ये कैश फ्लो ये है कि इसमें हमें ये शो होता है कि कैश बिजनेस में कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे ये कैश यूटिलाइज हो रहा है। कैश आ रहा है तो किस एक्टिविटी से आ रहा है और जा रहा है तो किस एक्सपेंस में जा रहा है। ये सब कुछ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्क्राइब होता है या इसकी हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। तो इसके कुछ की फीचर्स ये है कि इसमें ये हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के शो करता है। कैश का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमें शो करता है बिजनेस में। ये कोई भी पीरियड ऑफ टाइम में शो होता है, जैसे कि साल में या साल हो, साल से ज़्यादा हो, कम हो। इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं जैसे बैलेंस शीट में होते हैं। इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो हुई तो उसमें कैश कहाँ से आ गई, कैश कहाँ इन्वेस्ट हो गई और हमें फाइनेंसिंग कहाँ से मिली। ये चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं जिससे हमें बिज़नेस का कैश फ्लो मालूम हो जाता है। इसमें हमें इसका मतलब कि फ़ीचर ये भी है कि ये हमें नेट चेंज इन कैश बताता है कि बैलेंस हम शुरू में बैलेंस हमारा कितना था, बाद में कितना है, बाद में कितना रहता है और बीच में ये कैश हमारा है ये कहाँ यूटिलाइज होता है और कहाँ से आ रहा है। अभी इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पे 3 हमारे पास बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि कोई भी सिंगल बंदा या कोई भी सिंगल आदमी जो बिजनेस करता है वो खुद ओन करता है उसको, जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी बिजनेस है। कोई भी बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ नहीं है कि नहीं है। आप जो चाहो जैसा करना चाहो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है और आप ही उसके मतलब कि बिज़नेस के अकेले मालिक होते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स ये है कि सोल प्रॉपर्टीशिप की करेक्टरिस्टिक्स में पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें ओनरशिप होती है वो सिंगल बंदे की होती है। मतलब कि जो बंदा इसको ओन करता है वो सिंगल बंदा इसका ओनर होता है। इसमें लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और वर्क एरिया होता है जो हमारा जिसमें आप काम करते हो वो मतलब कि लिमिटेड होता है, वर्क एरिया होता है। इसमें आपका पूरा कैपिटल में पूरा राइट एक ही बंदे का होता है, जो बिज़नेस ओन करता है उसी का पूरा राइट, कैपिटल का पूरा राइट उसी का होता है। इसमें आपने मैनेजमेंट भी अकेले करनी पड़ती है। सोल प्रॉपर्टीशिप में मैनेजमेंट भी आप खुद करेंगे और आपको फ़ायदा होगा, इन्वेस्ट भी आप खुद करेंगे और फ़ायदा होगा वो पूरा भी आपको होगा। इसके फीचर्स में ये है कि मतलब आप फ्री हैं कोई भी बिज़नेस सेलेक्ट करने के लिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे कि आप कोई शूज़ का कारोबार करें या कोई बेकरी खोलें या कोई दूसरी कुछ मतलब कि कोई बिज़नेस करना चाहें तो इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप ये अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं और अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं। इसमें कोई वो लीगल एक्टिविटीज़ की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको चला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी जब आपका मन करे इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप फॉर्मल एग्रीमेंट है, 2 और 2 से ज़्यादा बंदों की एक एग्रीमेंट होती है जिसमें आप एग्रीमेंट में कहते हैं कि आपका मतलब कि ये पार्टनर ये काम जिम्मेदारी इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी, ये सब आप कुछ एक एग्रीमेंट में लिख देते हैं और इसके प्रॉफिट जो आपने शेयर करना है वो सब कुछ उसी में लिखा होता है। इस एग्रीमेंट के बाद आप मतलब कि पार्टनरशिप हो गए, आप कोई भी बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने ज़रूरी हैं पार्टनरशिप के लिए। ये एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। ये एक लॉफुल बिजनेस है। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो आपने शेयर करना पड़ता है। जो आपके दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ आपने अपना प्रॉफिट पूरा शेयर करना पड़ता है। और इसी तरह आप जब कैपिटल लगा रहे हैं तो वो कैपिटल भी डिवाइड होता है, या जिस रेशो से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी रेशो से आप उसका फ़ायदा भी लेंगे। इसमें लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, जैसे कि हम उसमें हो रही है सोल प्रॉपर्टीशिप में जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और इसी तरह इसमें भी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड होती है। उसके बाद पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? इन बिजनेस अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग द टर्म्स एंड ऑफ पार्टनरशिप।
what it does, how it works, and how the partners can work together. The right and responsibilities of a partners are vital components. इसमें बस यही कुछ लिखा होता है कि आपका इस पार्टनर की ये जिम्मेदारी है, इस पार्टनर की ये जिम्मेदारी है, और आप इस बिजनेस को किस तरह रन करेंगे, ये सब उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है. उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी और कॉरपोरेशन. कंपनी इसमें आता है कि व्हाट इज़ कंपनी. कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी टू फॉर अ कॉमन पर्पस. अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी. द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मनी बाय पीपल फॉर्म्स द कैपिटल ऑफ अ कंपनी. आप जो भी हमारे जो मतलब कि इस कंपनी में कोई भी पैसा लगा रहा है, वो उसके वो हो रहे हैं, वो कंपनी के लिए वो कैपिटल उन्हीं से आ रहा होता है. कैपिटल मतलब कि अभी ये कंपनी में जो भी इसके शेयर्स लेगा वही ओनर होगा, मतलब कि शेयर होल्डर्स आर ओनर्स. द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल एंड कंट्रीब्यूटर्स आर एज शेयर होल्डर्स. अब कंपनी का ओनर वही होता है जो इसके शेयर्स खरीदे. इसी तरह जैसे अब पार्टनरशिप में हमारे पास आ रहा था कि जो पार्टनर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसके ओनर्स हो रहे हैं. इसी तरह जो खोल रहा है सोल प्रॉपर्टीशिप को, बिजनेस जो ओन कर रहा है वही इसका वो है, ओनर है. जबकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या शेयर ले रहे हैं वही इसके ओनर्स बनते हैं. अभी ये कंपनी और कॉरपोरेशन के कुछ फीचर्स ये है कि ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, ये लीगल एंटिटी होती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. इसमें ये लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, और इसमें शेयर्स होते हैं या अपना ओनरशिप है, आप वो किसी को दे सकते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इसमें मौजूद होता है. तो शेयर कॉमन सील मतलब कि सबके मशवरे के बाद इसमें कोई फैसला लिया जाता है. ये इसको रन करने के लिए या ओपन करने के लिए भी इसके लिए बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको फॉलो करके फिर आप कॉरपोरेशन या कंपनी बना सकते हैं. उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो लीगल स्टेटस होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉट सेपरेट होता है लीगल स्टेटस. जनरल पार्टनरशिप में नॉट सेपरेट होता है. कॉरपोरेशन और कंपनी में वो सेपरेट होता है. लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स में लाइबिलिटी ऑफ ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप और जनरल में पर्सनल होता है, और कॉरपोरेशन में पर्सनल नहीं होता है. और उसके बाद टैक्स स्टेटस, टैक्स जो आपने देना पड़ता है, जो सोल प्रॉपर्टीशिप का जो ओनर होता है उसने टैक्स पे करना होता है. इसी तरह पार्टनरशिप में हर पार्टनर के ऊपर वो टैक्स डिवाइड होकर आ जाता है, और कॉरपोरेशन में इस तरह नहीं होता है. यहाँ पे वो कंपनी के जो प्रॉफिट है वहीं से वो टैक्स पे हो जाता है, वो एक्सपेंसेस में आ जाता है उसके. कंटिन्यूटी सोल प्रॉपर्टीशिप की कंटिन्यूटी में ये है कि कोई पार्टनर मर जाता है या अपनी विल से वो विड्रॉ करना चाहे तो बिजनेस को वो विड्रॉ कर सकते हैं. जबकि पार्टनरशिप में अनटिल कोई दूसरा पार्टनर नहीं आता है या एक पार्टनर छोड़ना नहीं चाहे वो कंटिन्यू रहती है. उसके बाद हमारे पास आता है हमारा चैप्टर 3 अकाउंटिंग साइकिल. सो अकाउंटिंग साइकिल क्या है हमारे पास. व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस दैट एनालाइज एंड रिकॉर्ड योर फाइनेंशियल डेटा. द प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन अकर. कोई भी ट्रांजैक्शन अकर होती है तो ये फिर अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस शुरू होता है, और फिनिश तब होता है कोई भी मतलब कि वो ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है आप वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको लिख दे तो अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस ये ख़त्म हो जाता है. अकाउंटिंग साइकिल ये बेसिक 8 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें आप कंपनी के बुक कीपिंग के टास्क को मुकम्मल करते हैं. इट प्रोवाइड्स क्लियर गाइड फॉर द रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड फाइनल रिपोर्टिंग ऑफ अ business's financial activities. A business can conduct the accounting cycle monthly, quarterly or annually based on how often the company needs the financial reports. आप अपनी कंपनी होती है वो साल में, 1.5 साल में, 2 साल में या मंथली वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या उसको क्या नाम अकाउंटिंग साइकिल बनाती है, अपने नीड के मुताबिक उसको मेंटेन करती है. तो इसमें बेसिकली 8 स्टेप्स होते हैं. इसमें पहला स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास होती है या अकर होती है तो उसको पहले हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 5 सेट्स में हेड्स में कहाँ पे ये फॉल कर रही है. उसके बाद हो रहा है
उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जनरल लेजर पे उसको पोस्ट करते हैं। उसके बाद हम उस पर फोर्थ स्टेप जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद के फिफ्थ स्टेप में हमारे पास होता है कि मेक एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, हम उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद सिक्स स्टेप ये है कि हम दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें एडजस्ट करते हैं जो भी मतलब कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको एडजस्ट करके दोबारा बनाते हैं। उसके बाद हम प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारे पास आता था बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो, हम इसको प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हम मेक क्लोजिंग एंट्रीज, ये इसके 8 स्टेप्स हैं। तो हम हर स्टेप को अभी डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे कि हर स्टेप में होता क्या है। तो उसके बाद पहला स्टेप जो है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज अकाउंटिंग साइकिल इज आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस। कंपनीज विल हैव मेनी ट्रांजैक्शन थ्रू आउट अकाउंटिंग साइकिल। अभी कोई भी अकाउंटिंग साइकिल है उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती है और कंपनी को हर ट्रांजैक्शन उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसमें अब कोई भी आइडेंटिफाई इस तरह करेंगे कि डेबिट क्रेडिट रूल। पहले तो हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखेंगे कि वो कौन से अकाउंट में आती है। जैसे कि हमारे पास आता है कि अहमद परचेज लैंड ऑफ आरएस ऑफ 60,000। तो इसमें एक तो हमारे पास वो आएगी कि परचेजेस इसका हेड है, इसको हम देखेंगे ये परचेजेस में आ रहा है या हमारा एक्सपेंस हो रहा है। दूसरा, इसमें हमसे कैश जा रही है तो हम ये देख रहे हैं कि एसिड में कमी आ रही है। तो इसी तरह हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रांजैक्शन बनाएंगे। तो दूसरा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल में हम उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लेजर बना रहे हैं, जैसे कि टी अकाउंट बनाते हैं और उसके हर जो अकाउंट है उसको हम सेपरेट लेके उसके हर अकाउंट के बारे में हमें पता लगता है कि इसमें कैश का अकाउंट में ये हुआ है, कमी हुई है, ज़्यादा हुआ है, ये सब कुछ हमें इसमें लेजर से पता चलता है। पोस्ट ट्रांजैक्शंस टू द जनरल, ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप हमारा है unadjusted trial balance. The unadjusted trial balance is the listing of general ledger account balance at the end of reporting period. Before any adjusting entries are made, the balance to create financial statement. The unadjusted trial balance is used to starting point from analyze account balances and make adjusting entries. द पर्पज़ ऑफ दिस स्टेप, इस स्टेप का पर्पज़ ये है कि इंश्योर करेंगे हम टोटल क्रेडिट बैलेंस एंड टोटल डेबिट बैलेंस आर इक्वल। टोटल हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो वो इक्वल होना चाहिए। ये हम अनएडजस्टेड उसमें देखेंगे, अगर उसमें कमी हो रही है, डेबिट ज़्यादा या क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, तो हम मिसिंग जो हमारे वो एंड ट्रांजेक्शन है उनको देखेंगे, उसको फिर एडजस्ट करेंगे। अभी जो हम एडजस्ट करने के लिए हम दोबारा देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं वर्कशीट को और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है फिफ्थ स्टेप। उसके बाद हमने बनाना है एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज और एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसमें हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हमने पहले बना लिया, आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन को, उसके बाद हमने उसको जनरल एंटिटीज़ में रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम उसका लेजर बना रहे, टी अकाउंट बना रहे, हर उस ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग सेपरेट करके देख रहे हैं। उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस में जो कमी हो रही है उसको देख के दोबारा हम ठीक कर रहे हैं। उसके बाद हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया। उसके बाद हमने उसका बैलेंस शीट का इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 7 स्टेप में बनाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेप या लास्ट स्टेप ये है कि कंपनीज के जो बुक्स है उसको हम क्लोज करेंगे। फाइनली द कंपनी एंड्स द अकाउंटिंग साइकिल इन द 8th स्टेप बाय क्लोजिंग इट्स बुक्स एट द एंड ऑफ द डे on a specified closing date. The closing statements provide a report for analysis of performance over a period. After closing, the accounting cycle starts over again. अब हमने जैसे कि इसको क्लोज किया, उसके बाद ये सालाना हम बना रहे हैं, तो अगला साल का
2022 का हमने बना लिया, उसके बाद हम उसको क्लोज करेंगे और 2023 का उसको अलग स्टार्ट करेंगे। अब अकाउंटिंग साइकिल का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंफर्मिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग साइकिल का मेन पर्पस ये है कि इसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इनमें एक्यूरेसी आ रही है, एक्यूरेसी है या नहीं है, ये हम देखने के लिए अकाउंटिंग साइकिल पूरा बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम और डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जैसे कि पहले ज़माने में या जो भी कोई पढ़ा लिखा ना हो, जिसने अकाउंटिंग ना पढ़ी हो, वो क्या करता है, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। जैसे कि एक शॉपकीपर है, उससे कोई उधार लेके दूध लेके जा रहा है, तो वो बस डायरेक्ट उसका लिख रहा है कि इसने इतने का दूध लिया ना, इतने इस पर लाइबिलिटी है, और उसने सामान खरीदे, उसका वो नोट करेगा। तो ये सिंगल एंटिटी सिस्टम में आता है। उसके बाद डबल एंटिटी सिस्टम में ये पूरे प्रोसेस डबल एंटिटी सिस्टम है। अभी जो अकाउंटेंट्स है, अकाउंटिंग जिसने पढ़ी हो, ये इसको फॉलो करता है, अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंटिटी अकाउंटिंग सिस्टम में इसको फॉलो करता है। अब इसके अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग सिस्टम का? अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस ये है कि इट प्रोवाइड्स हेल्प इन टैक्सेशन के जो इदारे हैं उनको टैक्स लेने में आसानी पैदा करती है, और कंपनी के जो फाइनेंशियल मामलात हैं उन सबको देखने में मदद करती है। डिसीजन मेकिंग फर्दर, हमने कंपनी के आगे डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। बिज़नेस वैल्यूएशन, मतलब कि आपके बिज़नेस में एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटीज़, ये सारे कितने हैं, ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये इंफॉर्मेशन उनके लिए भी प्रोवाइड करता है जो जिसने इन्वेस्ट करना हो, या उसने आगे जाके इन्वेस्ट करना हो, या इन्वेस्ट कर लिया हो, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इट मे बी बेस्ड, can be estimated to a degree, can be manipulated, and that the units used to measure business performance, namely cash, change in value। ये इसके some disadvantages है। और इसके बाद हमारे पास आता है नेट इनकम एंड रिटेन अर्निंग। नेट इनकम इज़ द टोटल अर्निंग ऑफ अ कंपनी। नेट इनकम इज़ द टोटल अर्निंग ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी ने टोटल कितना अर्न किया है उसको हम कहते हैं नेट इनकम। अब नेट इनकम हमने फाइंड करने का इसका फार्मूला ये है कि नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये इसका फार्मूला है जिससे हम नेट इनकम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट्स द टोटल नेट इनकम ऑफ अ कॉर्पोरेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब रिटेन अर्निंग फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला ये है कि रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू इनकम माइनस डिविडेंड। अगर हम इनकम से डिविडेंड माइनस करेंगे तो ये हमें रिटेन अर्निंग इससे मतलब मिल सकती है। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।